Good morning. The topic is resources. First, definition of resources. How to define resource. Zimmerman, geographer, defines resources as means of attaining given ends, the ends being the satisfaction of individual wants and attainment of social objectives. That is to say, resource satisfies human wants, be it individual want or social want. रिसोर्स क्या करते हैं? ह्यूमन वांट्स, मानव की जो डिमांड है, चाहिदा है, उसको पूरा करते हैं. अब ये जो मानव है वो इंडिविजुअल हो सकते हैं, इंडिविजुअल वांट हो सकते हैं अथवा social want. So these human wants, be it individual want or social want, it is something useful and possesses utility. Water, air, sunshine, land, forest, coal, machinery, etc. are all useful things. Therefore they are resources. So resources are useful and it has some utility. Resources relates to man and it is functional. A thing is resource so far as it affects man as a means of satisfying his wants. A thing becomes resource by its function in relation to man. But mere function is not enough. The end result of the function must be beneficial to man. So, resources are functional, कार्यात्मक, लेकिन it should be beneficial to man. The resources should be beneficial to man. The point is not only actual functioning but also functionability or potential functionability. Resource refers to the functional aspects of things at a given time and at a given place. Therefore, there are two essential attributes of resources. Number one is utility and number two is functionability. Resources may be more explicitly defined as all potentially functionable means of satisfying individual and social needs at a given time and at a given space. According to Encyclopedia of Social Science Encyclopedia के हिसाब से resources are those aspects of man's environment which render possible or facilitate the satisfaction of human wants and the attainment of social objectives. According to Fisher, resources are anything that can be used to satisfy a need or desire. Fundamentally, resources are merely environment functioning in the service of man. इसको हम और थोड़ा डिस्क्राइब करें इलाबोरेटली, इस प्रकार ये निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि संसाधन बनने के लिए किसी वस्तु में दो गुण की जरूरत है. एक तो है जो मैंने पहले कहा यूटिलिटी मतलब उपयोगिता, और फंक्शनबिलिटी व कार्यात्मकता या कार्यों करने की योग्यता. सामान्य शब्दों में मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जिन पदार्थों, ऊर्जा, मानवों तथा उपायों या संस्कृति का प्रयोग किया जाता है उनको संसाधन कहते हैं. प्रकृति, मानव और संस्कृति तीनों, प्रकृति, मानव एवं संस्कृति तीनों की अनन्य या पारस्परिक क्रियाओं के द्वारा ही संसाधनों का निर्माण होता है. Second point is characteristics of resources. First characteristic resources की है, resources are not present. Resources are made. They are made. It is a dynamic concept. Resources, second point is resource is a functional concept. जो मैंने पहले ही कहा हूँ, I have described it that it has functionability व कार्यात्मकता. Third point is the standard of man's living is the result of the utilization of resources. The standard of man's living, मानव की जो स्टैंडर्ड जैसे बढ़ते हैं, बाद जो भी स्टैंडर्ड में मानव रहते हैं वो कितनी रिसोर्सेज की यूटिलाइजेशन कर पा रहे हैं उस पर डिपेंड करते हैं. फोर्थ पॉइंट इज रिसोर्सेज शुड बी कंजर्व्ड फॉर द फ्यूचर. संरक्षण करना चाहिए इसको. और रिसोर्सेज आर मेड बाय ह्यूमन बीइंग.
यहाँ पे हम दो बात देखते हैं। एक तो दो संशोधनों की विविधों पक्षों के संदर्भ में विभिन्न विद्वानों के विचारों को दो वर्गों में रखा जा सकता है, स्थैतिक विचारधारा व स्टैटिक स्कूल, और दूसरी है गतिक विचारधारा व डायनामिक स्कूल। स्टैटिक स्कूल इस वर्ग के सिद्धांत विद्वानों का ये मत है कि संशोधन स्थैतिक तथा निश्चित होते हैं, डेफिनिट होते हैं, इनकी परिमाण में वृद्धि नहीं की जा सकती है। इस संप्रदाय के अनुसार नदी का जल, घने वन, खनिज पदार्थों तथा सभी संशोधन है, चाहे मानव उसका उपयोग करे या ना करे। और डायनामिक स्कूल एट द ऑपोजिट साइड, डायनामिक स्कूल में इस विचारधारा व गतिक विचारधारा की मान्यता ये है कि संशोधन होते नहीं हैं, बनते हैं। जो मैंने फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक में कहा, रिसोर्सेस आर नॉट प्रेजेंट, दे आर मेड। रिसोर्सेस आर दे बिकम, तैयार किया जाता है। प्रकृति के उपादान तब तक संशोधन नहीं बनते जब तक ये मानव की इच्छाओं व आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं करते। फोर्थ पॉइंट, ये तो है स्टैटिक स्कूल और डायनामिक स्कूल की। लास्ट जो मैं कहना चाहती हूँ वो है, इस लेक्चर में लास्ट पॉइंट मेरा है रिसोर्स क्रिएटिंग फैक्टर्स। रिसोर्स को तैयार कौन करते हैं, रिसोर्स क्रिएटिंग फैक्टर्स क्या क्या है। रिसोर्स क्रिएटिंग फैक्टर्स हैं नेचर, मैन एंड कल्चर। नेचर, मैन एंड कल्चर। नेचर, ह्यूमन बीइंग, और कल्चर व ह्यूमन बीइंग की जो स्किल है, नॉलेज है, एडुकेशन है, ये सभी हैं रिसोर्स क्रिएटिंग फैक्टर। प्रकृति, स्वयं, मानव और मानव द्वारा निर्मित संस्कृति संशोधन हो सकते हैं। इनमें से प्रत्येक कारक मानवीय कल्याण प्रदान करने के लिए कार्य कर सकता है। इस प्रकार ये संशोधन निर्माण करने वाले कारक के रूप में भी कार्य करते हैं। प्रकृति व नेचर, प्रकृति की बहुत सी वस्तुएं किसी एक समय पर ही संशोधन और संशोधन निर्माणकारी कारक दोनों ही हो सकते हैं। और मानव की ऊर्जा, उसकी दक्षता व स्किल, उसकी नॉलेज, उसकी एडुकेशन की एक अक्षय भंडार है। इसलिए मानव स्वयं एक महान संशोधन है। और उसके जो कल्चर हैं, जो मानव की स्किल के द्वारा मानव अपनी कल्चर बनाते हैं। संस्कृति मानव और प्रकृति का सम्मिलित उत्पाद है। प्रकृति से ही कुछ रिसोर्सेज को लेके मानव अपनी संस्कृति को बनाते हैं, कल्चर को बनाते हैं। तो ये तीनों हैं रिसोर्स क्रिएटिंग factors. Thank you.